Hello students. The example is if the line के दो equations given है intersect each other then find m. दो लाइन intersect हो रही है मतलब दोनों में का shortest distance 0 है. Two lines intersect each other if and only if shortest distance between them is 0 और shortest distance का formula determinant of x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 सेकेंड रो में a1 b1 c1 और थर्ड रो में a2 b2 c2 इक्वल टू 0. लाइंस के दो इक्वेशंस है, एक x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1. सेकेंड लाइन है x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2 आर इंटरसेक्टिंग if shortest distance is 0 then the determinant of x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 second row a1 b1 c1 third row a2 b2 c2 equal to 0. यहाँ पे गिवन लाइन के इक्वेशंस x minus 1 upon 2 equal to y plus 1 upon 3 equal to z minus 1 upon 4 एंड सेकेंड लाइन है x माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल टू y प्लस m अपॉन 2 इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन 1. यहाँ पे न्यूमरेटर में -1 है तो इनके निगेटिव है 1, y प्लस 1 है तो -1 और z माइनस 1 है तो 1. ये हो गया x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू -1, z1 की वैल्यू 1. वैसे x2 इक्वल टू 2, y2 इक्वल टू -m, z2 इक्वल टू 2. a1 b1 c1 है 2 3 4, a2 b2 c2 दैट मीन्स 1 2 1. ये हो गया x1 इक्वल टू 1, y1 इक्वल टू -1, z1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 2, y2 इक्वल टू -m, z2 इक्वल टू 2. a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू 4, a2 इक्वल टू 1, b2 इक्वल टू 2, c2 इक्वल टू 1. एंड therefore given lines intersect, so determinant of 2 minus 1 minus m plus 1, z2 minus z1 means 2 minus 1, a1 b1 c1 means 2 3 4, a2 b2 c2 means 1 2 1 equal to 0. 2 minus 1 means 1, 2 minus 1 है 1. डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है तो 1 इंटू 3 माइनस 8 माइनस ऑफ m प्लस 1 इंटू 2 माइनस 4 प्लस 1 इंटू 4 माइनस 3, 3 माइनस 8 माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5 माइनस माइनस 2 दैट इज प्लस 2 इंटू माइनस m मीन्स माइनस 2m plus 2 into 1 plus 1 means plus 2 plus 1 into 1 means 1 equal to 0. minus 2m equal to minus 2m transfer किया तो 2m equal to minus 2, m equal to minus 1. The value of m is minus 1. Next example है find the vector equation, vector and Cartesian equation of line passing through the point -1 -1 2 and parallel to the line 2x minus 2 इक्वल टू 3y प्लस 1 इक्वल टू 6z माइनस 2. यहाँ पे पॉइंट गिवन है पैरेलल टू द लाइन, यानी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालना है. वही डायरेक्शन रेशियोज रिक्वायर्ड लाइन करेंगे, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे और वो सेम डायरेक्शन रेशियो विल बी द फॉर रिक्वायर्ड लाइन. गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज 2x माइनस 2 इक्वल टू 3y प्लस 1 इक्वल टू 6z माइनस 2. 2x माइनस 2 में से 2 कॉमन देन x माइनस 1, 3y प्लस 1 में से 3 कॉमन तो ब्रैकेट में y प्लस 1 बाई 3, 6z माइनस 2 में से 6 कॉमन तो ब्रैकेट में z माइनस 2 बाई 6. 2 3 6 का एलसीएम 6 है तो 6 से डिवाइड करना है. यहाँ पे डिवाइड बाई 6 किया तो 2 3 6, डिवाइड बाई 6 किया तो 3 2 6, डिवाइड बाई 6 किया 6 6 कैंसिल मीन्स 1. जो कि 3 to 1 डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन. Direction ratios of given line are 3 to 1. Condition है कि required line is parallel to given line and the direction ratios of required line will be same 3 to 1 and therefore the equation of line passing through the point है -1 2 and having direction ratios 3 to 1 is x minus x1 upon a equal to y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon c. x minus minus 1 upon 3 equal to y minus minus 1 upon 2 equal to z minus 2 upon 1, that is x plus 1 upon 3 equal to y plus 1 upon 2 equal to z minus 2 upon 1. You get required Cartesian equation of line.
point A है -1 2 and vector A will be minus vector I minus vector J plus 2 vector K. लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है 3 to 1 and a vector V parallel vector 3 vector I plus 2 vector J plus vector K. And therefore the equation of line vector equation है vector R equal to vector A plus lambda vector B. Vector R equal to vector A means minus vector I minus vector J plus 2 vector K plus lambda times 3 vector I plus 2 vector J plus vector K. You get required vector equation of line. By the next example है find the direction cosines of the line. लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है. लाइन का इक्वेशन वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B. तो वेक्टर बी में वेक्टर आई वेक्टर जे और वेक्टर के कोएफिशिएंट्स वेक्टर बी है. वेक्टर ए बी में वेक्टर आई वेक्टर जे वेक्टर के कोएफिशिएंट्स रहते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन. गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन डायरेक्शन रेशियोज 2 3 0 यानी ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू 3 सी इक्वल टू 0. वेक्टर आई का कोएफिशिएंट है ए वेक्टर जे का कोएफिशिएंट बी वेक्टर से के का कोएफिशिएंट है सी. देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन आर ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. एम की वैल्यू बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. एन की वैल्यू है सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. एल इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर. m equal to 2 upon denominator same n equal to c की वैल्यू 0 divided by any term that means 0. So l equal to 2 upon root 13 m equal to 3 upon root 13 n equal to 0. योगा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ गिवन लाइन. Find the Cartesian equation of the line passing through origin which is perpendicular to the line x minus 1 equal to y minus 2 equal to z minus 1 and intersect the line x minus 1 upon 2 equal to y plus 1 upon 3 equal to z minus 1 upon 4. यहाँ पे दो कंडीशंस है. रिक्वायर्ड लाइन ये पहले लाइन को परपेंडिकुलर है. कंडीशन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0. रिक्वायर्ड लाइन ये सेकंड लाइन को इंटरसेक्ट हो रही यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू 0. ये दो कंडीशन यूज़ करना है. तो गिवन लाइन्स आर x माइनस 1 इक्वल टू y माइनस 2 इक्वल टू z माइनस 1. सेकेंड है x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 4. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन आर a1 इक्वल टू 1 क्योंकि इसका डिनोमिनेटर है 1, b1 इक्वल टू 1, c1 इक्वल टू 1, a2 equal to 2, b2 equal to 3, c2 equal to 4. Let ABC be the direction ratios of required line. Required line के direction ratios ABC. अब पहली कंडीशन है कि required line is perpendicular to x minus 1 equal to y minus 2 equal to z minus 1. और perpendicular के लिए कंडीशन a1 into a plus b1 into b plus c1 into c equal to 0. a1 की वैल्यू है 1, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू 1 पुट किया तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0. ये एक इक्वेशन आ गया. बाद में सेकेंड कंडीशन है कि रिक्वायर्ड लाइन इंटरसेक्टिंग द गिवन लाइन x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 4. अब रिक्वायर्ड लाइन के ऊपर का पॉइंट है ओरिजिन, गिवन लाइन के ऊपर का पॉइंट है 1 माइनस 1 1. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला डिटर्मिनेंट ऑफ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1. a1 सेकंड रो a b c, थर्ड रो a2 b2 c2 इक्वल टू 0. x2 माइनस x1 ये लाइन के ऊपर का पॉइंट है 1 माइनस 1 1 यानी 1 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 0 1 माइनस 0. ये सेकंड रो ए बी सी a2 b2 c2 मीन्स 2 3 4 डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन. दैट मीन्स डिटर्मिनेंट 1 माइनस 1 1 a b c 2 3 4 इक्वल टू 0. सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट.
सॉल्व किया था 7a + 2b - 5c = 0। ये इक्वेशन और प्रीवियस इक्वेशन सेकंड इक्वेशन a + b + c = 0 दोनों सॉल्व करना है। तो a अपॉन डिटर्मिनेंट होना b और c के कोएफिशिएंट्स का, b और c के कोएफिशिएंट्स है 1 1 2 - 5, ये होगा डिटर्मिनेंट, इक्वल टू b अपॉन माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट होना a और c के कोएफिशिएंट्स, a और c का कोएफिशिएंट्स है 1 1 1, यहाँ पे 7 - 5, तो 1 1 7 - 5 इक्वल टू c अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ a एंड b, a और b के कोएफिशिएंट्स है 1 1, a और b के कोएफिशिएंट्स है 7 2, यानी a अपॉन -5 - 2 इक्वल टू b अपॉन माइनस ऑफ -5 - 7 इक्वल टू c अपॉन 2 - 7, a अपॉन -7 इक्वल टू b अपॉन 12 इक्वल टू c अपॉन -5, दैट मीन्स माइनस से मल्टीप्लाई करके a अपॉन 7 इक्वल टू b अपॉन -12 इक्वल टू c अपॉन 5, यानी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन 7 -5 12 5, a इक्वल टू 7 b इक्वल टू -12 c इक्वल टू 5। And for Cartesian equation of line passing through the point 0 0 0 and having direction ratios 7 - 12 5 is formula x - x1 upon a equal to y - y1 upon b equal to z - z1 upon c। x1 y1 z1 यानी 0 0 0 origin x - 0 upon 7 equal to y - 0 upon -12 equal to z - 0 upon 5, that means x by 7 equal to y by -12 equal to z by 5। You get Cartesian equation. Write the vector equation of the line whose Cartesian equations are y equal to 2 and 4x - 3z plus 5 equal to 0। यहाँ पे कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, वेक्टर इक्वेशन लिखना है। कार्टेशियन इक्वेशंस आर 4x - 3z plus 5 equal to 0, y equal to 2। यहाँ पे 4x - 3z इक्वल टू -5, y -2 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 3z - 5 एंड y -2 इक्वल टू 0। 4 और 3 का एलसीएम 12 है, तो 12 से डिवाइड करेंगे, 4x अपॉन 12 इक्वल टू 3z - 5 अपॉन 12 एंड y -2 इक्वल टू 0, यानी 4x अपॉन 12 इक्वल टू y -2 अपॉन 0, y - 2 इक्वल टू 0, तो y -2 अपॉन 0 इक्वल टू 3z - 5 अपॉन 12, और दिस कैन बी रिटन एज 4x by 12 मीन्स x by 3 इक्वल टू y -2 अपॉन 0 इक्वल टू 3 कॉमन z - 5 by 3 अपॉन 12, ये 3 4 12, यानी x by 3 इक्वल टू y -2 अपॉन 0 इक्वल टू z - 5 by 3 अपॉन 4। ये हो गया कार्टेशियन इक्वेशन। गिवन कार्टेशियन इक्वेशन का सिमेट्रिक फॉर्म है। This line passes through the point 0 2 5 by 3 and having direction ratios 3 0 4। पासिंग थ्रू द पॉइंट इन्हें वेक्टर ए मिल जाता है। वेक्टर ए हो गया 2 वेक्टर i प्लस 2 वेक्टर j प्लस 5 by 3 वेक्टर k। डायरेक्शन रेशियोज के ऊपर से वेक्टर बी 3 वेक्टर i प्लस 4 वेक्टर k एंड देयरफॉर वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्बडा वेक्टर b, यानी वेक्टर r इक्वल टू 2 वेक्टर j प्लस 5 by 3 वेक्टर k प्लस लैम्बडा इंटू 3 वेक्टर i माइनस 4 वेक्टर k। देन नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन। लाइन के ऊपर का पॉइंट्स निकालना है विच आर एट द डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द बेस पॉइंट a 1 2 3। ए पॉइंट से 3 यूनिट डिस्टेंस पे आइदर और द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, 2 पॉइंट रहेंगे। सबसे पहले गिवन इक्वेशन x - 1 अपॉन 2 इक्वल टू y - 2 अपॉन -3 इक्वल टू z - 3 अपॉन 2 इक्वल टू सपोज लैम्बडा, यानी x - 1 इक्वल टू लैम्बडा, y - 2 इक्वल टू -2 लैम्बडा, z - 3 इक्वल टू 2 लैम्बडा, और x इक्वल टू 1 प्लस लैम्बडा, y इक्वल टू 2 - 2 लैम्बडा, z इक्वल टू 3 प्लस 2 लैम्बडा। ये हो गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन। लेट m बी द पॉइंट दैट लाइज ऑन द लाइन। लाइन के ऊपर का पॉइंट m 1 प्लस लैम्बडा 2 - 2 लैम्बडा 3 प्लस 2 लैम्बडा। ये हो गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एनी पॉइंट ऑन द गिवन लाइन। डिस्टेंस बिटवीन m एंड a 1 2 3 कितना है 3 यूनिट्स, यानी डिस्टेंस a m इक्वल टू 3 यूनिट्स। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अंडर रूट ऑफ x1 - x2 होल स्क्वायर
plus y1 minus y2 whole square plus z1 minus z2 whole square, m distance, under root of 1 plus lambda minus 1 whole square plus x2 y2 minus y1 whole square means 2 minus 2 lambda minus 2 whole square plus z2 minus z1 whole square यानी 3 plus 2 lambda minus 3 whole square. 1 minus 1 cancel, lambda square, 2 minus 2 cancel, minus 2 lambda का square यानी 4 lambda square plus 4 lambda square. Squaring both side, 9 equal to lambda square plus 4 lambda square plus 4 lambda square. 9 lambda square equal to 9, lambda square equal to 1, lambda equal to plus minus 1. यानी लैम्बडा के दो वैल्यूज़ के लिए दो इक्वेशंस मिलेंगे, दो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, एक प्लस 1 पुट करेंगे, 1 plus 1, 2 minus 2, 3 plus 2, सेकेंड आएगा 1 minus 1, 2 plus 2 और 3 minus 2. That means m point will be either 2, 0, 5 or 0, 4, 1.